ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਪਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ UK ਜਾਣਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। Hello, ma'am. Sat Shri Akal. Welcome to the show. Hello, Kavita. Hello. Thank you so much for inviting us. Today we are online, working online, but it's good. Thank you so much for inviting us. जी, स्टूडेंट्स जी साडे कनाडा खास तौर पे आज ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸੋ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾइंड ਡਾइवर्ट होया होवे। कविता मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि कनाडा जो है वो एक बहुत ही एक ऐसी कंट्री है जो स्टूडेंट्स को हमेशा अट्रैक्ट करती रही है और कोविड के बीच में भी हम लोगों ने देखा है कि कनाडा ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है बहुत ज़्यादा एकोमोडेट किया है। सो कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन आई वुड से कि कनाडा हमेशा स्टूडेंट्स का जो है वो ड्रीम डेस्टिनेशन रहने वाला है फर्स्ट चॉइस रहने वाला है। सो अगर हम आज की डेट में भी देखें तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कनाडा ही है और स्टूडेंट्स जो हैं वो हर तरीके से फुल स्विंग एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं कनाडा के लिए और स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका कनाडा का जो है वो सक्सेसफुल वीज़ा रिजल्ट्स उनको मिले। सो एडमिशंस का टाइम है मई 2022 के एडमिशंस भी समहाउ कहीं ना कहीं पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन सितंबर 2022 के जो एडमिशंस हैं वो हर तरीके से शुरू हो चुके हैं। हर एक कॉलेज कोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं हर एक प्रोविंस में। सो स्टूडेंट्स को जो है वो अब जितना जल्दी हो सकता है अपने ऑफर लेटर प्रोसेस करने चाहिए ताकि टाइमली अपने चॉइस के प्रोग्राम्स जो हैं वो रिटेन कर सकें और अपने चॉइस के कॉलेजेस में आगे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें। ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਰਟਸ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ सीट। डेफिनेटली कविता ऑप्शंस हैं। अगर हम मई 2022 की बात करें अगर स्टूडेंट अपनी चॉइस को फ्लेक्सिबल रखता है तो जरूर उनके चॉइस के जो प्रोग्राम्स हैं वो उनको मिल सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज और प्रोविंस को लेके स्टिक नहीं रहते तो डेफिनेटली आप मई 2022 के लिए अपने ऑफर लेटर्स अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप सितंबर 2022 के लिए अपना ऑफर प्रोसेस कीजिए क्योंकि सितंबर 2022 में हर एक स्ट्रीम के लिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रोग्राम्स ओपन हैं और स्टूडेंट को चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है ऑफर आप प्रोसेस कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है एप्लीकेशंस का। डेफर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर इनटेक को अपना एप्लीकेशन जो है सितंबर के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। सो द ओनली थिंग इज कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जल्दी से अपने ऑफर लेटर्स प्रोसेस कर लेने चाहिए। ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ वर्क परमिट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एंड आफ्टर PR तक। देखिए कविता ऐसा है कि स्टूडेंट की जो है वो अपनी चॉइस है और अगर हम कनाडा एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस यही होता है कि डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया जाए। डिग्री के लिए बहुत कम स्टूडेंट जो है वो अपना माइंड बनाते हैं। शायद कैपिटल को माइंड में रख के ये डिसीजंस लिए जाते हैं क्योंकि आप जब डिग्री प्लान करते हैं आपको 4 साल की एजुकेशन करनी है। कनाडा में मैक्सिमम डिग्रीज का जो ड्यूरेशन है बैचलर डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स है।
सो अगर हम कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को देखें, पीआर सिस्टम को देखें, तो कनाडा इज अ कंट्री जो 2 साल अगर आप कैनेडियन लैंड पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हो तो 2 साल के बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफर किया जाता है, और उन्हीं 3 सालों में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेके आप अपने पीआर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स का फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डिप्लोमा ही रहता है, और लकीली कनाडा का जो एजुकेशन करिकुलम है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज स्टूडेंट्स को डिप्लोमा लेवल पे जो है वो ऑफर किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी 1 साल के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन स्टिल आई वुड से कि स्टूडेंट्स को डिप्लोमा के साथ साथ डिग्रीज को भी टारगेट करना चाहिए। आप अगर अपना एजुकेशन डिग्री के लिए प्लान करते हैं, आप बहुत बेनिफिशियल रह सकते हैं, क्योंकि जॉब प्रोस्पेक्ट आपका बहुत जो है वो वाइडन अप हो जाता है। एडिशनली आप जो अगर आप यूनिवर्सिटी से अपने कोर्सेज को कंटिन्यू करते हैं, कॉलेजेस लेवल पे कोर्सेज को कंटिन्यू करते हैं, तो प्लेसमेंट के ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स डिग्री के लिए भी अपना एजुकेशन प्लान करें। एक और चीज़ मैं साथ में ऐड करना चाहती हूँ कि इंडिया में जो बैंक्स हैं वो डिग्रीज के लिए आपको एजुकेशन लोन बहुत आराम से देते हैं। सो अगर आप डिग्री के लिए अपना एजुकेशन प्लान करते हैं, आप आराम से एजुकेशन लोन अवेल करके अपना फंड कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आफ्टर ग्रेड 12 आप अपनी डिग्रीज के लिए भी प्लान कीजिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद अगर आप चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको डायरेक्टली मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन देते हैं। स्टूडेंट्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैनेजमेंट अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लेने हो, डिग्री मैनेजमेंट लेवल पे लेनी हो, तो आपको जीमैट की रिक्वायरमेंट है, या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आपको इंजीनियरिंग डिग्रीज मास्टर लेवल पे लेनी हो तो आपको जीआरई करना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चीज स्टूडेंट्स को बता दूं कि कनाडा में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट जीआरई जीमैट आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन देते हैं। द ओनली थिंग इज यू नीड टू कम टू अस विद कंप्लीट प्रोफाइल, ताकि ये जो ऑप्शंस हैं वो आपको बताए जा सकें और आप इन डिग्रीज को ऑप्ट कर सकें। सो हम क्योंकि डिग्री की बात कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स को थोड़े से 1-2 वर्ड जरूर देना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मैक्सिमम मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में आपको विदाउट जीआरई जीमैट एडमिशन देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के पास मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हर एक तरीके के हैं। मैनेजमेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना का। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स फील्ड में इस तरीके के हैं जिन लोगों ने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कर रखा है। सो ऐसे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन एमएड के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के लिए प्लान कर सकते हैं। एडमिशंस अभी भी मई 2022 के लिए भी ओपन है, सितंबर 2022 के लिए भी एडमिशंस ओपन हो चुकी हैं। और द मोस्ट अट्रैक्टिव हाईलाइटिंग फीचर इज कि यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में मास्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो उसका एनुअल फीस जो है वो सिर्फ $8,500 है, विच इज वेरी कॉम्पिटिटिव। सो ये इस तरीके के ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एमबीए प्रोग्राम आप ले सकते हो विदाउट जीमैट। सो वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम। वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। 1 साल में 4 इंटेक्स आपको यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट जो है वो ऑफर करती है। सो लाइफ वाइज देयर आर मेनी ऑप्शंस जिसको स्टूडेंट रिटेन कर सकता है। कैपिलानो यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम्स आप ले सकते हो बैचलर लेवल पे। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ डिप्लोमास लीडिंग टू डिग्री, जिनको हम लोग एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स कहते हैं, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम्स या एसोसिएट ऑफ साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल डिग्री प्रोग्राम्स। सो इस तरीके के ऑप्शंस भी स्टूडेंट प्लान कर सकता है। और इसमें एडवांटेज ये है कि आप इनिशियली 2 साल का कोर्स यानी कि डिग्री के फर्स्ट और सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं। आफ्टर यू टेक योर पीआर, उसके बाद आप अपना 3rd और 4th ईयर इन्वेस्ट करके आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। सो लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस कनाडा में हैं जो स्टूडेंट्स को रिटेन करने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें पर्सनली मिलना पड़ेगा, एक कंप्लीट असेसमेंट एडवाइस लेना पड़ेगा, ताकि ये चीजें आपको डिटेल में बताई जा सके। जी मैडम शिवानी चोपड़ा साढ़े नाल जी एंड देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਰਮਾ फर्स्ट एंड कह रहे हैं हेलो मैम, मैंने 21 ऑफ जनवरी को फाइल लगाई है मेन टेक के लिए, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स।
आपने जनवरी में अपना एप्लीकेशन फाइल किया है, ये फेब हम लोग थर्ड वीक में अभी चल रहे हैं, सो वी जी स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम, अभी काफ़ी टाइम वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग के लिए है, हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। हालांकि मैं ये अपडेट ज़रूर स्टूडेंट्स को दे दूँ कि फेब का जो महीना है, फेब का जो मंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है और हाई कमीशन की तरफ से बहुत फास्ट रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स पॉजिटिव रहें, किसी भी टाइम उनको उनकी एप्लीकेशन के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका एप्लीकेशन, आपका जो प्रोफाइल है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कोलंबिया कॉलेज हैरी कह रहे ने वैनकूवर एंड अलेक्जेंडर कॉलेज वैनकूवर ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੀਏ? देखिए, अलेक्जेंडर कॉलेज इज अ प्राइवेट कॉलेज, लेकिन इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं। सो Alright. इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे होने की वजह से ही अलेक्जेंडर कॉलेज का जो वीजा सक्सेस रेट है बहुत स्मार्ट है। सो आप अलेक्जेंडर को भी प्लान कर सकते हैं। कोलंबिया कॉलेज इज अ गवर्नमेंट कॉलेज और इस कॉलेज में आपको वो कॉलेजेस आर वेरी गुड, दोनों ही अच्छे हैं। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, आप अपने एरिया के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। दोनों ही कॉलेजेस का जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत स्मार्ट है। सो आप ब्रिटिश कोलंबिया वैसे भी एक बहुत ही रिफाइंड प्रोविंस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सेटलमेंट के लिए ये बहुत अच्छा प्रोविंस है। वेदर वाइज भी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट करता है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सूटेबल है। तो आप दोनों में से किसी भी कॉलेज का डिसीजन ले सकते हैं। So next is Singh Teja, MCOM 75% 2014, 6.5666 plus 5 year experience है जी as assistant manager, reapplied ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FD 21 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, father ਦੀਆਂ ITR ਨੇ, Saskatchewan Polytechnic combined course business management plus a supply chain। So visa chance ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, already applied ਹੈਗਾ ਨਾ, do you think so ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, or you suggest something else? सी द प्रोफाइल इज गुड, आपका एमकॉम किया है, 6.56 नीच वाले कैंडिडेट हो, सियास्ट पॉलिटेक्निक में आपने अप्लाई किया है, द कोर्स कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गुड, आई गेस आई बिलीव एंड आई होप आपको पॉजिटिव वीजा रिजल्ट्स मिलने चाहिए। इस टाइम हाई कमीशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और स्टूडेंट्स को फेब वाले महीने में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो वीजाज मिले हैं। सो आप पॉजिटिव रहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही डिमांडिंग और एक बहुत ही इम्प्रूविंग स्ट्रीम है जिसका बहुत फ्यूचर है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये स्ट्रीम जो है वो डेवलपिंग है। सो आप पॉजिटिव रहिए, किसी भी टाइम आपको आपके वीजा का रिजल्ट मिल सकता है। यूर अ गुड केस, आपने फंड्स भी बहुत अच्छे अपने एप्लीकेशन में ऐड किए हैं। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड वेट फॉर योर वीजा। जी अच्छा, इथे कह रहे थे मेरे को इन्होंने 5 years ਦਾ experience ਹੈ as a assistant manager, right? But lots of students ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ gap ਦੀ ਕੋਈ justification ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ how do you help students, or like ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ gap ਵਾਲੇ students ਦੇ ਵਾਸਤੇ? देखिए, कविता, गैप कवर करना एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और मैं ज़रूर ये चीज़ बता दूँ कि जो ग्रेड 12 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट्स को अपने गैप को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 12 के बाद आप अपनी जॉब अगर दिखाते हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो एक एलिजिबल फैक्टर नहीं है जॉब दिखाना ग्रेड 12 के बाद। सो ग्रेड 12 के बाद अगर आपका गैप है तो आप एक सही जो है वो असेसमेंट लीजिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस की जगह पे आप अपनी जो है वो क्रैश कोर्सेज दिखा सकते हैं, कुछ आपकी एजुकेशन को एनहांस करने वाले जो कोर्सेज हैं वो दिखा सकते हैं। सो उसके लिए आपको पर्सनली आके हमारे ऑफिस में मिलना पड़ेगा ताकि आपकी कंप्लीट प्रोफाइल को असेस करके आपको ये चीज़ गाइड की जा सके। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, तो ग्रेजुएशन के बाद गैप कवर करना समवेयर इज ईजी ऑल्सो एंड मैंडेटरी ऑल्सो। अगर आपका 3 साल का, 4 साल का गैप है, आपकी जिस भी स्ट्रीम की ग्रेजुएशन है उसी से रिलेटेड आप अपना जो है वो एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आप मैनेज कर रहे हैं, अगर आपका नेचुरल एक्सपीरियंस है, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप मैनेज कर रहे हैं, सो आपका जो पेपर वर्क है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होना चाहिए जो हाई कमीशन के फॉर्मेट्स हैं उसको मैच करे।
एंड वी एट माइक्रो ग्लोबल वी आर वेरी मच सेंसिटिव ऑन दिस। जब भी हम आपके गैप डॉक्यूमेंट पे वर्कआउट करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके डिटेल्स जो है वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सही तरीके से जाने चाहिए। आपके नंबर ऑफ जॉब आवर्स क्या हैं, आपके जॉब ड्यूटीज क्या हैं, आपके सैलरीज इंसेंटिव्स क्या हैं। सो ये चीज़ें फुली फॉर्मेटेड तरीके से आपके एक्सपीरियंस में ऐड होने चाहिए ताकि वो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सके। एडिशनली एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ग्रेड 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अनअवेयर होते हैं। स्टूडेंट्स अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके कोचिंग्स लेते हैं, एनडीए की कोचिंग्स लेते हैं, डिफेंस एग्जाम्स की कोचिंग्स लेते हैं, लेकिन जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करते हो तो आप ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते अपने कंसल्टेंट को। सो अगर आपने इस तरीके के कुछ कोचिंग्स लिए हैं, इस तरीके के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपेयर हुए हो, तो आप उस चीज़ को ऑथेंटिकली अपने एप्लीकेशन में गैप कवरिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि समहाउ अगर आप ग्रेड 12 के बाद अपना इमीडिएटली कनाडा का स्टूडेंट वीजा प्लान नहीं कर पाए हो तो आपको डमी एडमिशन जो है वो इंडियन कॉलेजेस में लेके रखना चाहिए, ताकि जब आप वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करो तो आप वीजा ऑफिसर को ये चीज बता सको कि आप आउट ऑफ एजुकेशन नहीं थे, यू वर इन टच ऑफ एजुकेशन एंड आफ्टर ग्रेड 12 यू हैड टेकन एडमिशन इन सम कॉलेज हियर इन इंडिया और आप एजुकेशन के साथ बिल्कुल टच में थे। सो नाउ यू आर अप्लाइंग कनाडा। सो ये कुछ चीजें हैं जिन टेक्स्ट को यूज करके आप अपने गैप्स को जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और रिफ्यूजल से प्रिवेंट हो सकते हो। जी। तो अच्छा बाकी कैटेगरीज भी हैगियां ने, ओपन वर्क परमिट है या सुपर वीजा दी गल कर लिए, ओपन वर्क परमिट ते कोई रिजल्ट्स आ रहे ने हुन? देखिए कविता, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज और स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को डेफिनेटली एक रिलीफ मिलेगा कि फेब वाले महीने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को ओपन वर्क परमिट के मेडिकल्स इशू हुए हैं, रिक्वेस्ट लेटर, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लेटर्स भी आए हैं। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। नाउ ऑनवर्ड्स हाई कमीशन ने ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। वी हैव रिसीव्ड आवर 4 मेडिकल्स लास्ट डे और दिस इज रियली वेरी गुड न्यूज। मेडिकल्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट लेटर्स भी आ रहे हैं जिसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉल किए गए हैं। आपका जो स्पाउस कनाडा में एजुकेशन ले रहा है उसके अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉल की गई है। सो आप इस चीज को लेके थोड़ा सा अटेंटिव रहें, अवेयर रहें, पॉजिटिव रहें। ओपन वर्क परमिट के वीजा प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, रिजल्ट्स आर वेरी फास्ट। सो एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जिन भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट के लिए लगे हुए हैं, काइंडली वो अपने जो भी उनका कैनेडियन स्पाउस है, एजुकेशन जो कनाडा में ले रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को अपने जीसीकी पोर्टल पे कंटिन्यूसली आप अपडेट करते रहें। अगर उन लोगों के कुछ रिजल्ट्स ऐड हुए हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स इशू हुए हैं, ओपन वर्क पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई किया है या कुछ भी उन लोगों ने ड्रॉप लिया है, जॉब स्टार्ट की है, सो ये जो भी अपडेट्स हैं आप अपने जीसीकी पोर्टल पे जरूर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपडेट करें, ताकि जब भी वीजा ऑफिसर आपकी ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन पर डिसीजन लेता है, अपडेटेड एप्लीकेशन आपके रिलेटेड और आपके स्पाउस के रिलेटेड उसके पास होगी। सो डेफिनेटली जल्दी जो है वो प्रोसेसिंग पॉसिबल होगी। अच्छा एक होर मेरा उत्थे सवाल है, लाइक ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ओपन वर्क परमिट वास्ते अप्लाई करना ड्यूरिंग स्टडी के, ठीक है जी 3 महीने हो गए उस तो बाद अप्लाई करिए या फिर ਜਦੋਂ ਉਹ वर्क परमिट ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ है? देखिए कविता, लोगों के बहुत डिफरेंट से परसेप्शंस हैं इस चीज़ को लेके एंड आई ऑलवेज गाइड कि अगर आपकी मैरिज जो है वो एक मैच्योर मैरिज है और आप लोग दोनों ही एजुकेटेड हैं, आपका जो इंडियन स्पाउस है वो भी एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, जिसने ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, सो ऐसे केस में आप इमीडिएटली अपना जो है वो ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इमीडिएटली जब आपका एक स्पाउस कनाडा चला जाता है, वहां जाके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर लेता है, उसको स्टडी परमिट डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है, एनरोलमेंट लेटर्स इशू हो जाते हैं, उसके इमीडिएटली बाद आप यहाँ से ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, वीजास डेफिनेटली आते हैं। लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पे आपकी रीसेंट मैरिजेस हैं, बिल्कुल फ्रेश मैरिजेस हैं और आपने कनाडा अप्लाई करने से 15 दिन पहले, महीना पहले या 2 महीने पहले ही मैरिज की है, सो ऐसे केसेस में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लीजिए।
यंग मैरिजेस अगर हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आप एक सेमेस्टर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली केस टू केस ये डिसीजंस जो हैं वो कविता लिए जाते हैं। ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन एक विज़र्ड की तरह नहीं है कि सभी एप्लीकेशंस को सेम तरीके से फाइल किया जाए। एवरी केस इज अ डिफरेंट स्टोरी, एवरी केस हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, तो उस तरीके से ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइल की जाती है। इसीलिए मैक्रो ग्लोबल से हम हमेशा ये ओपिनियन करते हैं कि आप जब भी अपनी मैरिज प्लान करते हैं या ओपन वर्क परमिट के लिए प्लान करते हैं, आप डेफिनेटली एक एडवाइस लीजिए। आप एक बार ऑफिस विजिट कीजिए। वी हैव आवर ऑफिस इन मोहाली एज वेल एज इन खन्ना। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बार आइए, अपना केस डिस्कस कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग एंड वी बिलीव कि आपको जो है वो सही तरीके से गाइड किया जाए, ताकि आप जब भी ये एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट के लिए फाइल करें, आपके कुछ उसमें जो है वो गलत डिसीजंस ना हो जिसकी वजह से आपका वीजा पॉसिबल ना हो पाए। जी मोनिका शर्मा का सवाल एक बार मैं तो डिस्कस कर लेने हैं तब तक। 18 नवंबर फाइल लॉन्च, 3 फरवरी को मेडिकल एंड बायोमेट्रिक 9 दिसंबर की थी, वो भी 3 फरवरी को अपडेट हो गया बट पीपीआर नहीं आया। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस जो हैं वो क्यू में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है। और मैं जरूर स्टूडेंट्स को ये चीज़ अपडेट करता हूँ दैट हाई कमीशन इज वेरी मच फास्ट नाउ डेज। उन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट है कि जल्दी से जल्दी वीजा रिलीज किए जाएं, स्टूडेंट्स को ओपिनियन दिए जाएं, उनकी एप्लीकेशंस पे रिजल्ट्स जल्दी दिए जाएं। सो एज यू हैव डिस्क्राइब्ड योर केस कि आपका बायोमेट्रिक मेडिकल सब अपडेट हो चुका है, सो आपको वेट करना पड़ेगा। गिव इट लिटिल मोर टाइम। अगर आप मेन टेक के कैंडिडेट हैं सो डेफिनेटली हम लोगों के पास अभी 2 महीने का टाइम है। मार्च अप्रैल दोनों ही महीने हम लोगों के पास हैं। फेब के भी हम लोगों के पास जो है वो 10-12 डेज हैं। सो बी पॉजिटिव एंड इट्स रियली पॉसिबल कि हम लोगों को किसी भी टाइम पे आपके वीजा रिजल्ट्स मिले। जी सो देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम जी साडे स्टूडेंट्स काइंडली कॉल करते रहा करो जी। ये लाइव प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ आ रहे हैं? कविता, जो ये विजिटर वीजास का जो कैटेगरी है और सुपर वीजा का जो कैटेगरी है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और दिस इज द हाई टाइम जब आपको अपने पेंडिंग एप्लीकेशंस को प्लान कर लेना चाहिए। सुपर वीजा ऑब्वियसली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ही हैं। और जो भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं, कनाडा मिलना चाहते हैं, वो सुपर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज बता दूं कि सुपर वीजा के लिए आपके बच्चों का क्वालिफाई करना, इनकम वाइज क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे कनाडा में उस लेवल पे अर्न करते हैं, उनकी इनकम अगर क्वालिफाई करती है, तो यहाँ से पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपर वीज़ा वाली कैटेगरी के लिए आपको पर्सनली ऑफिस में आके एक बार इनकम का असेसमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका जो बच्चे हैं कनाडा में वो सुपर वीज़ा की इनकम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इसका 100% वीज़ा सक्सेस रेट है। एंड द प्रोसेसिंग इज ऑल्सो वेरी फास्ट। वी हैव रिसीव्ड अभी लास्ट वीक हम लोगों के पास 15 डेज में ही सुपर वीजा जो है वो प्रोसेस होके आए हैं। सो ये चीज का ध्यान जरूर आप दें और जितना जल्दी हो सकता है सुपर वीजा के लिए प्लान कीजिए। समर्स हैं, कनाडा में समर स्टार्ट होने वाले हैं। समर्स में वैसे भी जो विजिटर वीजा का जो रिजल्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाती है और विजिटर वीजा समर सीजन में ज्यादा जो है वो हाई कमीशन की तरफ से दिए जाते हैं। विजिटर वीजा की अगर हम लोग बात करें, मैं अभी भी यही चीज एडवाइस करूंगी और ये चीज ओपिनियन करूंगी कि विजिटर वीजा सिर्फ और सिर्फ फैमिली रियूनियन पर्पसेस के लिए ही अप्लाई किया जाए। जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मिलना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, ऐसे ही केसेस में जो है वो विजिटर वीजा प्लान किया जाए।
आप पर्सनली आके हम लोगों से मिलिए, बिकॉज़ वी इन दैट केस वी कैन गाइड यू इन डिटेल कि आपकी पॉसिबिलिटी किस केस में बनती है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये चीज़ आपको डिटेल में समझाई जा सकती है। अदरवाइज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विज़िटर वीज़ा एंड सुपर वीज़ा की कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है, बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट हैं। सो आप जितना जल्दी हो सकता है प्लान कीजिए और इस टाइम का एडवांटेज लीजिए। जी, सो बहुत-बहुत शुक्रिया शिवानी मैम, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू कविता, थैंक you very much। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇ ਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।